Himanshu, welcome to the program. Thank you so much, sir. Pleasure being here. What was this point when you got the kick कि यार business करेंगे? अब होता ये था कि 16 घंटे में गरीबी देखता था और 8 घंटे अमीरी, और मेरे को था यार ये 8 को 24 करना है बस। कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं आया यार ये तो कुछ और ही है यार आई फील कॉम्प्लेक्स तब आता है when you trying to compare yourself। मैं तो पहले ही छोटा मान के बैठा हुआ था ना। अच्छा, क्या everything is built on passion only या ऐसा नहीं है? As an entrepreneur, If you want to live a happy life, follow a passion. If you want to live a successful life, follow problems. तुम काम 6 साल कर लोगे, तुम एक बिजनेस 6 साल कर लोगे because you've done something 6 years and your brain has a reference of that. I hope you got the answer. How to start a business as a teenager? He just gave you the idea. ये जो high ticket का concept है, I want to understand this. High ticket is a perception and high ticket is not a reality. ये 9 to 5 नहीं होगा मुझसे। क्या सजेशन है उस आदमी के लिए जो ऐसा सोचता है? कहाँ स्टार्ट करें? Ideas is the biggest scam word you can ever use. हिमांशु, आज अगर ये सब कुछ छूट जाए आपके हाथ से, कुछ ना हो, the position, the पैसा, the companies, you wake up tomorrow and you have nothing. Where would you start? What would you do? Hi everybody, this is C. Nitin Soni here. दोस्तों, आई एम रियली एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज जो गेस्ट इस पॉडकास्ट सेशन में है उनसे आपको कुछ ऐसी वैल्यू, इनसाइट्स और दिमाग आपका खुलने वाला है that you're going to become a huge fan of this person if you are not already one. आज का जो शख्स है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने अपना बिजनेस उस वक्त स्टार्ट किया जब मुझे तो बिजनेस का बी नहीं पता था, और तब से लेकर के आज तक, I mean, he's today dominating this industry. When you talk about coaches, helping people, helping coaches and consultants and entrepreneurs across India, well, he's the man of the moment. He is the man that people are chasing. He's the man that people are lining up to book appointments with. I have none other than Himanshu Agarwal with me. Himanshu, welcome to the program. Thank you so much, sir. Pleasure being here. It is such a pleasure. आप आज की तारीख में हिमांशु YouTube पर वीडियो बाद में दिखता है, पहले आप दिखते हैं। तो मेरा ये आपसे पूछना है कि क्या YouTube से कोई दुश्मनी तो नहीं है कि मैं देखने नहीं दूंगा किसी की वीडियो, पहले मैं देखूंगा? नहीं, मेरे को YouTube का एक्चुअली फायदा करवाना है। आई वांट मोर पीपल टू बाय प्रीमियम, तो इसलिए मैं चला रहा हूँ जिससे ज्यादा लोग प्रीमियम ले पाए। तो ये मतलब इज दिस अ कॉन्शियस डिसीजन कि यू आर वेरी एक्टिव ऑन YouTube, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट एड्स, एंड आई एम श्योर the audience also understands that when you are everywhere, it requires hell lot of money that you're spending on ads. Yeah. And that means you're making hell lot of money that you can afford to spend on ads. Yeah. तो ये कैसा क्या system है? Like, what do you do? Tell our audience about it. Yeah, so my age is 25 right now. I just turned 4 days back 25. So finally I cannot say 24, 25 बोलना पड़ेगा. But I'm a serial entrepreneur. I have multiple companies. I have edtech companies. I have 3 edtech companies. I have software companies and I have agencies. Right now we are acquiring agencies, software companies, everything to build a whole empire for ourselves, because we believe that don't build a company, build an empire. Don't build just one company that just serves some people, but build an empire that you can be proud of after 50 years or 60 years of your life. तो बना ही रहे हो तो कुछ बड़ा बनाओ. That's what we feel. तो इसीलिए आपकी कंपनी का नाम भी इंटरनेट कोचिंग एम्पायर. Exactly. That's very very attractive and amazing. तो हिमांशु, ये बताओ, अभी आपसे बात हो रही थी बिफोर वी स्टार्टेड दिस सेशन कि 9th क्लास की वो आपकी एक यंग एज, व्हेन यू वर इन 9th क्लास, तब आपने बिजनेस समझ करना शुरू कर दिया था. तो ये मुझे समझना है कि आया कैसे माइंड में? मतलब इज योर फादर he's an entrepreneur, या पहले से ही भाई you are an अग्रवाल, राइट? तो वो तो आई एम श्योर कुछ तो है ही डीएनए में होगा. वो तो डीएनए में है. लेकिन उसके अलावा भी मतलब what was this point when you got the kick कि यार बिजनेस करेंगे? Got it. So यार मेरी mom side was very good. My dad side was not very good, like financially. So I was kind of a lower middle class family, to be said. But I was in a very prestige school, NDPS called in Indore. And the reason I was able to get in a prestige school is because मेरे father का रेडियम सबका था, and because of that, some personal reasons, everything, he was able to get a barter kind of thing, I would say, or something with the school. तो मैं उस पर पढ़ पाया, सिंपल सी बात. तो मैं 4th क्लास में स्कूल में गया और मैं 12th क्लास तक उसी स्कूल में पढ़ा. अब होता यह था कि 16 घंटे में गरीबी देखता था और 8 घंटे अमीरी. तो when I used to be in the school, all kids are coming, एक सेकंड, you said 16 घंटे में गरीबी में जी रहा था और 8 घंटे में अमीरी में जी रहा था. वो अमीरी तो स्कूल में थी. Because school is very prestigious, right? मतलब मेरे 9th क्लास में आप मानोगे नहीं, मेरी साल की फीस थी 1.2 lakhs. 9th क्लास में. राइट? और ये बस और मैस इंक्लूडेड नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ स्कूल की फीस. That's huge, राइट? मतलब कॉलेज में लोग पे नहीं करते. I was paying in 9th class, राइट? तो जब वहां पे गए तो मैं देख रहा था यार
बच्चे अलग ही यहाँ पे चल रहे हैं यार, यहाँ पे बच्चे मर्सिडीज से आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के घर में 6 कुत्ते हैं, यहाँ पे बच्चों के घर में 11 गाड़ियाँ हैं, ये कौन सी लाइफ होती है यार, क्योंकि ये कभी देखी नहीं, राइट। एंड स्कूल में दे आर प्लेइंग गुड स्पोर्ट्स, लाइक दे आर प्लेइंग चेस, दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल, दे आर प्लेइंग गोल्फ, दे आर प्लेइंग ये वो, गोल्फ की रिक्वेस्ट चलवा रहे हैं। मतलब गोल्फ क्या होता है पहले तो ये समझाओ, तुम रिक्वेस्ट चलवा रहे हो कि स्कूल गोल्फ खोले, बट ये होता क्या है। So I was like, यार this is something new, this is not something I've seen, and I was happy doing that. I was not like ये खराब है, ये तो गलत है, नहीं, I was like very happy, यार इतने खुश रहते हैं ये लोग, टेंशन नहीं रखते, राइट। मैं जैसे ही घर पहुंचूँ लड़ाई चालू, यार लोन का क्या करना है, पैसे कब आ रहे हैं, ये कब हो रहा है, एंड आई यूज्ड टू हेट इट कि why we are talking about this and not anything else in the world, right? Why can't we go for a family dinner every week and just chill out? Why we need to fight every single weekend पे about the bank calling us and you know all of that? तो मैं 8 घंटे अमीर हूँ, 16 घंटे गरीबी हूँ। अब मेरे को था यार ये 8 को 24 करना है बस मेरा था ये 8 24 हो गया तो लाइफ में मजा आ गया भाई, ये चाहिए। अब वो कितने टाइम के लिए होगा क्या वो नहीं पता, बट आई वाज लाइक ये करना है। अब मैं सिंपल अपने दोस्तों से पूछता था, भाई तुम लोग घर पे आके इतने खुश रहते हो कि यहाँ पे ही बस एक्टिंग करते हो? तो लाइक नहीं, घर पे भी इतना ही चलता है। आई वाज लाइक आई वांट टू सी योर हाउसेस, तो हाउस पार्टीज हो रही है या बच्चे कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं या जो भी चल रहा है, तो सिंस दे आर फ्रॉम रिच फैमिलीज दिस वाज वेरी नॉर्मल एट देम, राइट, हाउस पार्टीज एंड एवरीथिंग। तो हिमांशु कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि यार ये तो कुछ और ही है यार आई फील कॉम्प्लेक्स तब आता है व्हेन यू ट्राइंग टू कंपेयर योरसेल्फ। मैं तो पहले ही छोटा मान के बैठा हुआ था ना, अच्छा, राइट। आई वाज लाइक व्हेन आई यूज्ड टू मीट फ्रेंड्स ओवर देयर, आई वाज नॉट ट्राइंग टू कंपेयर माय सेल्फ कि मैं भी कुछ हूं। आई वाज लाइक भाई देख मैं कुछ नहीं हूं, आई एम गुड एट कंप्यूटर साइंस, आई एम गुड एट कोडिंग, तेरे को चाहिए मैं सिखा दूंगा, तेरे को नहीं आता ये, बट यू गुड एट अदर वेज इन योर लाइफ, राइट। आई वाज नॉट ट्राइंग टू कंपेयर माय सेल्फ विद एनी किड इन माय स्कूल, आई वाज ट्राइंग टू मोर प्ले ऑफ अ रोल ऑफ कि यार देख मेरी नहीं इतनी औकात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दे लाइक दैट ऑनेस्टी, राइट। अभी बच्चे हैं 9th क्लास में, उनको क्या ही समझ में आ रहा है किसी चीज़ का, बट दे लाइक दैट ऑनेस्टी। मैं घूमता था उनके साथ, दोस्त था मैं उनका, एंड कहीं बाहर जाते दे यूज्ड टू इवन पे माय एक्सपेंसेस समटाइम्स एंड ऑल ऑफ दैट। पर मेरे को अच्छा ही लगता है कोई मेरा पैसा दे रहा है, राइट। बोलता है यार आई विल पे यू नो, बट दे आर लाइक करे कोई नहीं, टेंशन चिल। So लाइक कमाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड टू कंटिन्यू रोम विद देम, बिकॉज आई एम यू नो लविंग दिस। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था सौम्य जैन, उसके पहले एक स्टोरी है कि मैं उनके घर जाता था, उनके पापा से मिलता था, पापा बोलते हैं फार्मास्यूटिकल में इतना बड़ा काम है हमारा, रियल एस्टेट का ये काम है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। मतलब मेरे पापा ये काम क्यों नहीं करते यार, सबके पापा यही वाले काम करते हैं, मेरे पापा ये क्यों नहीं करते, राइट। मेरे पापा लॉयर है, मेरे पापा सी, मेरे पापा क्यों नहीं है। तो लाइक कि तो मतलब कुछ अलग है यहाँ पे, लाइक व्हाट दे डूइंग इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माय फैमिली डज। आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस नाउ, राइट, फॉरगेट अबाउट लर्निंग एंड कॉलेज एंड स्कूल, आई वांट टू डू दिस। अब इसके लिए कॉलेज जाना पड़े जाऊंगा, इसके लिए बाहर जाना पड़े जाऊंगा, जो भी है मेरे को ये बनना है। अब मुझे उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ये उस टाइम पता नहीं था, बिजनेसमैन बोलते हैं ये नहीं पता था, प्रोफेशनल बोलते हैं ये नहीं पता था। सो स्टार्ट द जर्नी ओवर देयर। उनके पापा ने फिर क्या मुझे किताब दे देते थे कि ये वाली पढ़ा कर, ये पढ़ा कर, हमने अपने टाइम भी ये किताब पढ़ी थी, राइट, इनको फॉलो कर, इनकी बात सुना कर, लाइक अच्छा अंडरस्टूड। एंड उनके पास ऑब्वियसली दे वर रिच, दे हैड बिग लाइब्रेरीज इन देयर होम, दे यूज्ड टू गिव मी लाइक वन बुक एंड समथिंग, लाइक इसको पढ़ के आना। तो मेरे को एक किताब मिली थी, 3 किताब मिली थी, एक 0 to 1, एक रिच डैड पुअर डैड और 0 to 1 के नोट्स। वन ऑफ द फ्रेंड्स उनके पापा ने दी, बोले पढ़ना, ठीक है पढ़ लिया। एंड देन ही वाज लाइक अब मैं आप क्या करूँ, बोले स्कूल में लाइब्रेरी, वहाँ पे बोलो सेल्फ हेल्प बुक्स, वहाँ पे बोलना ये, वहाँ पे बोलना ये, वो देंगे, ठीक है। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जनरली अगर आज की तारीख में आप किसी 9th क्लास के बच्चे को ये 3 किताबें पकड़ाओ रैंडमली, वो कुछ नहीं करेगा, वो उसको छोड़ देगा, पढ़ेगा नहीं। सो मे बी यू आर टू रिसेप्टिव कि यार मुझे जानना है। इट वॉज नॉट एक्सेप्टिव रिसेप्टिव, घर की मजबूरी है भाई। मतलब मैं किताबें इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि ओ हम बड़े बने, नहीं, मैं किताबें इसलिए पढ़ रहा हूँ भाई, लोन है, मैं 9th में हूँ, लोन है, ठीक है, मैं पापा का ऑफिस का रेंट नहीं हो पा रहा है, राइट, मैं मजबूरी में पढ़ रहा हूँ, पर अब मजा आ रहा है। तो मिर्जापुर का डायलॉग है कि चालू मजबूरी किया था पर अब मजा आ रहा है, मेरा भी सेम केस है, राइट। चालू मजबूरी किया था लेकिन अब उसमें मजा आ रहा है, तो मजबूरी में चालू कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम लाइक भाई कुछ भी करना पड़ेगा, किताब पढ़ने को ठीक है, बोलेंगे एक टांग पे खड़े होकर कॉलिंग करो, करेंगे, बोलेंगे भाई बालकनी में पूरे दिन चक्कर लगाना, कॉलिंग करनी, करेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज अगर बंदा सक्सेसफुल बोल रहा है कर लो, तो हर्ज क्या है, हर्ज क्या है, मुझे तो पता नहीं क्या करना है, तो क्यों अपना दिमाग लगाऊं, उससे पूछ लेता हूँ भाई क्या करना है, वो बोल रहा है ये कर लो, ठीक है कर लेते हैं। सो दैट वाज द लॉजिक दैट आई वाज बिहाइंड। एंड वहाँ से उन्होंने वो किताबें दी, बोले क्या समझ में आया, बोले ये समझ में आया, वो लाइब्रेरी जाके पढ़ना, ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स देता था, पढ़ता था मैं। तो हमारा हर हफ्ते में 1-2 घंटे का लाइब्रेरी पीरियड होता था, उसमें आके मैं पढ़ता था। एंड देन वन डे वन ऑफ द फ्रेंड्स फादर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड आई वाज लाइक क्रेजी, व्हिच इज लाइक पढ़ तो लिया, करेगा क्या इसका, लाइक पता नहीं, बोले क्या पढ़ा, पता है ये पढ़ा, एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, इन्वेस्टर होता है, बिजनेस ओनर होता है, एम्प्लॉय होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड सब। तो एसेट कहाँ बनाए, और जब तक लगाओगे नहीं जो पढ़ा तो मिलेगा कुछ नहीं,
ओ लगाना भी पड़ेगा. तो आई वाज लाइक ओके, एंड नाउ लाइक नाउ फिगर आउट समथिंग. आई एम लाइक मेरे को नहीं पता, आप बताओ. एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम पीपल डू, राइट. मुझे नहीं पता, आप बता दो. यार आप बता दो, कभी कोई सही जवाब है ही नहीं, सही सवाल है ही नहीं, बिकॉज दे डोंट नो एनी कॉन्टेक्स्ट अबाउट योर स्टोरी. पीपल कम इन माय डीएम्स, हिमांशु मैं 12th क्लास में मैं क्या करूँ. अरे भाई मुझे क्या मालूम, तू कौन से शहर में, तेरी एज क्या, तेरा जेंडर क्या, तूने क्या कर रहा है, तुझे क्या पता, मुझे नहीं पता. राइट. हिमांशु मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अब मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, मुझे कैसे पता होगा. राइट. बिकॉज मेरा ही नहीं पता अगले 2 महीने क्या होने वाला है, तुम्हारा कैसे बता दूँ. आई एम नॉट अ ज्योतिष समवन, राइट. तूने भी सेम चीज समझी भाई, तेरा जवाब किसी के पास नहीं है, तेरे पास ही है. ढूंढना तुझे ही है. हाँ, उसको इंप्लीमेंट करना है या उसकी हेल्प चाहिए कोई और मिल जाएगा, सपोर्ट करेगी, बट ढूंढना तुझे ही जवाब. ठीक है भाई, ढूंढते हैं. मेरे दोस्त था सौम्य जैन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, कैमरा था उसके पास. मैंने बोला यार भाई ये कैमरा है तेरे पास, लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी क्या होता है, समझाया. हाँ है तो लाइबिलिटी. बोला एवरी लाइबिलिटी कैन बी टर्न इनटू एसेट. बोले अच्छा. बोला देख मैं तेरा कैमरा यूज करूँ, तू सिखा देगा मेरे को. बोले सिखा दूंगा, क्या है, बहुत आसान होता है, ISO शटर स्पीड ये. बोला ठीक है. आई वेंट टू द स्कूल एंड आई एम लाइक यार आप इंडिपेंडेंस डे करते हो, आप टीचर्स डे करते हो, आप ये करते हो, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर आता है. सेम स्कूल में सेम स्कूल आई एम स्टडिंग. उसी स्कूल में जाके सो यू आई वेंट टू द पहले मेरी टीचर कि मैडम ये करना है. बोले ठीक है कल्चर उसमें तुम्हें डाल देंगे, तुम कर लेना. आई वाज नॉट डूइंग फॉर द मनी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी कैन आई कन्वर्ट लायबिलिटी टू एसेट. करेक्ट. मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, मेरे को ऐसा था 500 रुपये तो मुझे चलेगा, बट आई जस्ट वांट टू सी कैन आई गेट पेड फॉर दिस. तो सीख लिया. गए टीचर वाला एचओडी पास, एचओडी और वाइस प्रिंसिपल गए एंड दे वर लाइक या कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बोले कर लो पक्का. बोले हाँ. बोला इंडिपेंडेंस डे में बैठूंगा मैं, इससे अच्छा कैमरे फोटो खींच लूंगा बच्चों की, आपकी मैगजीन करवा दूंगा, आपका वीडियो बनवा दूंगा, आफ्टर इफेक्ट्स लगा दूंगा, मुझे पता है ये सब, मैं कर लूंगा ये सब, आप स्कूल में सिखाते ही ये सब, आई विल डू दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. कूल. आई गॉट द प्रोजेक्ट. वाओ दिस इज क्रेजी. इट इज. और फिर मैंने बोला यार ये इसको एक्सपांड कैसे करें, क्योंकि ये तो बढ़िया चीज है. वाज आई टर्न द लायबिलिटी टू एसेट. आई वाज नॉट हैप्पी दैट आई मेड सम मनी, आई वाज हैप्पी आई टर्न द लायबिलिटी इनटू एन एसेट. अब एक कैमरा जो मेरे दोस्त का पड़ा हुआ था जस्ट फॉर किसी पंछियों की फोटो खींचने के लिए, आई एम यूजिंग इट एज एसेट. और वहां पे दिमाग चला यार अब क्या करें. तो मैंने ऑल द फ्रेंड्स अराउंड मी वर रिच, तो मैंने स्वामी को बोला यार फोटो शूट चालू करते हैं. आई सिंपली टेल देम, फेसबुक बूम पे था, iPhone 4S भी तब तक लॉन्च नहीं हुआ था. तो मैंने बोला यार कि मैं शूट करता हूँ, इनको फेसबुक अच्छे पिक्चर अपलोड करेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे ये लोग, बिकॉज बिग ईगोज विल मेक मनी. लाइक पता नहीं तू क्या बोल रहा है, जो करना है कर. आज की लैंग्वेज में बहुत सिंपली समझा रहा हूँ, उस टाइम पे बस चल रहा था मेरे दिमाग में जो भी चल रहा था. मैंने बोला यार आप 4,000 रुपये दो, 20 फोटो दूंगा. यार आप 2,000 रुपये दो, 10 फोटो. यार आप 5,000 रुपये दो. अपने क्लासमेट्स को. ठीक है. उनके लिए 4,000 5,000 कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं. उनकी पॉकेट मनी 25,000 रुपये 9th क्लास में, कोई बड़ी बात नहीं. बोले आ जाना, चल पार्टी में तो आते ही कैमरा लेके आ जाना इस बार. लंदन सौम्य कैमरा लिया, वहां पहुंचे, डिड द फोटो शूट, मेड द मनी, एंड मी एंड सौम्य स्टार्टेड अर्निंग लाइक 40-45,000 a month in 9th-10th using 9th class. Yeah, that's crazy. That's absolutely crazy. कोई 9वीं क्लास का तो कोई बच्चा अगर सुन रहा है इस कॉन्वर्सेशन को, तो कुछ गूज़बम्प्स हो रहे हैं अंदर, कुछ महसूस हो रहा है क्या? I get a lot of this question from a lot of people. सर टीनेजर हूं, अभी तो पढ़ने की उम्र है, अभी थोड़ी कुछ कर सकता हूं. तो मैं एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा डिफरेंट माइंडसेट है सोसाइटी के अंदर. एक है बेटा पढ़ने की उम्र है, क्या कर रहा है तू, पढ़ अपना 9th क्लास में, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, अगले साल तेरे बोर्ड है, तू 11वीं कर, फिर बोर्ड है, तू अपना कॉलेज कर, प्रोफेशनल एग्जाम कर. इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि ये क्या कर रहा है, अभी तो पढ़ने की उम्र है, तू CA कर, पढ़ाई कर, ये सब बाद में करना. बट ऑन द अदर साइड वी नो इन अस, और आजकल की जनरेशन स्पेशली, कि यार अभी करना है, वो आग वो अंदर से अभी उठ रहा है कि मुझे अभी करना है, क्या 9th, क्या 10th, क्या 12th. आई फील लाइक डूइंग समथिंग नाउ. तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड बी एबल टू रिलेट टू यू कि आप कैसे कह रहे हो कि 9th-10th क्लास में यार उसको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ये कर नहीं पाते हिमांशु बहुत से लोग. इस बारे में व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस ऑन दिस? अब इसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं. नंबर 1 कैटेगरी इज द कैटेगरी ऑफ एक्सक्यूजर्स. मैं एक्सक्यूजर्स बोलता हूँ, ठीक है. मेरे माँ बाप नहीं माने, उन्होंने माँ बाप से पूछा भी नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे. तुमने पूछा नहीं, तो तुम्हें कैसे मालूम? मुझे बस मालूम है. मुझे बस मालूम है. मेरे घर वाले ये नहीं करेंगे, मैं किसी दोस्त को कैसे ढूंढूं जिसके पास कैमरा है, मैं ये कैसे करूं. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब भाई मुझे दोस्त मिले जिसके पास कैमरा था, अब कुछ और मिलता है, मैं कुछ और करता है यार. और जितने भी लोग ये वाली चीज़ की कैटेगरी होते हैं, मेरा सिंपल ये होता है, जब नेहा को डेट के लिए पूछा था तब माँ बाप से पूछा था क्या, राइट. जब पहली बार सिगरेट पीने गए थे तो माँ बाप को पूछा था क्या. पॉइंट खत्म. जब तुम्हें कुछ सही में चाहिए होता है, तुम खुद कर लोगे बिना किसी के पूछे और बिना कोई एक्सक्यूज मारे. और जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा, तुम एक साथ बहाने ढूंढ के ले आओगे और सामने वाले पे ब्लेम डालने की कोशिश करोगे. दैट इज नंबर कैटेगरी 1. कैटेगरी 2 आर किड्स हु एक्चुअली डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस. उनको करना है.
But the only problem is कैसे करूँ, how, I don't know how. And that's where I teach this concept in every podcast, and I love this concept, which is it's not how, it's who. हम सब सिर्फ अब नया कोच आया हो या बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो या कुछ चालू कर रहा हो, आई फील दैट यू डोंट नो शिट इन योर लाइफ एंड नोबडी हैज फिगर आउट एनीथिंग एक्सेप्ट एक्सपर्ट्स. अगर मुझे आज मेरा जीएसटी फाइल करना है तो एक तरीका मैं यूट्यूब पे जाऊँ, हाउ टू फाइल जीएसटी, पूरा माथा मारूँ ये वो इधर उधर, या फिर मैं सीए नितिन सोनी के पास आऊँ, सर यार 5 मिनट लूंगा, जीएसटी में हेल्प कर दोगे क्या? अरे कुछ नहीं होता, ये हो गया, अच्छा बस थैंक यू सो मच. हाउ मच टाइम आई सेव्ड? डिड आई बिल्ड अ रिलेशन? True. Was I able to get value from someone? Was I able to do it faster? Was it able to make less mistakes? Yes. मैंने क्या किया यार, मैंने बोला यार फोटोग्राफी नहीं आती. अब ये थोड़ी ना है कि फोटोग्राफी का कोर्स करना पड़ेगा, 35,000 का आता है. क्या बहाना है ये? भाई तेरे को आती ना, जितनी आती उतनी सिखाना यार. Who not how है? Right. Who not how? That's interesting. Right. So simply find the person who knows the answer. True. And get them to it. True. मैंने आपको बोला यार नितिन जी यार मेरे क्लाइंट से उनको बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है. नितिन जी बोले अरे कुछ नहीं होता, 3 स्टेप होती है, ये और ये. अच्छा अभी मैं खुद फिगर आउट करूं, मैं क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है ना. नितिन जी आएंगे करवा देंगे यार. राइट. मेरे को फोटोग्राफी जैसी 100 में यार बताना है क्या होता है. देख इसको ऐसे चलाते, ये किया नहीं चल रहा, ये कर, हाँ चल गया. I can figure out faster because there is someone who knows better than me. True. Why am I need to have that ego of I know everything? Correct. Why do I need to become the person? मुझे सब पता है भाई, हो ढूंढो ना. राइट. एंड दूसरा is that who accessible to you? और हर who accessible नहीं. अब आप मुझे DM कर देंगे लोग Instagram पे, I find that you are my who. But I have other people to support as well, right? So I cannot just help a random Instagrammer to solve their problem. So again, not just who, accessible who. Exactly. ये आप किसके पास जा सकते हो यार, आसपास ढूंढो. आसपास अरे तुम्हारे पापा किसी चीज के एक्सपर्ट है, तुम्हारा दोस्त के पापा किसी चीज के एक्सपर्ट है, तुम्हारा दोस्त किसी चीज का एक्सपर्ट है, तुम्हारे दोस्त का दोस्त किसी चीज का एक्सपर्ट है, उनके पास जाओ ना. कुछ तो उनको पता है जो तुम्हें नहीं पता. राइट. इधर एंड हो जब मिले तो इधर हायर देम और लर्न देम. सिंपल एज दैट. राइट. या तो सीख लो उनसे, उनको हायर कर लो. पैसा है तो हायर कर लो, रिसोर्स है तो हायर कर लो. पर हायरिंग का तो पैसा लगता है, नहीं लगता. हायरिंग का पैसा नहीं लगता अगर विजन बड़ा है तो. अगर मैं उसको विजन दिखा सकता हूँ, वो बोलेगा भाई मैं फ्री में काम करने रेडी हूँ, 6 महीने 7 में पैसा कमाएंगे, दे देना. ठीक बात. राइट. और दूसरा लर्न करना, पर सीखने के लिए पैसा लगता है, नहीं लगता. अगर तुम उसको दिखा सकते हो तुम रॉकेट हो तो. मुझे इतने लोगों ने फ्री में सिखाया ना नितिन, आई कैन नॉट इवन टेल यू द नेम. इतने लोग, मैं 9th में हूँ, 10th में हूँ, कॉलेज में हूँ, कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मुझे इतने लोगों ने फ्री में सिखाया ना. बोलते भाई तेरे में वो है ना, वो स्पिरिट तेरे को करना है. और जब हम तू बोलते हैं ना, तू करके लाता है अगले दिन और 4 क्वेश्चन हम पे उठाता है, विच आई लाइक कि यू आर नॉट वेस्टिंग माई टाइम एनी मोर. यू डोंट जस्ट कम टू चिट चैट विद मी. द रीजन माई फ्रेंड्स फादर यूज्ड टू टेल मी ये किताब पढ़, और अपने खुद के बेटे को नहीं बताते थे, इज बिकॉज वो खुद के बेटे फायर नहीं थी. बट दे यूज्ड टू सी दैट इन मी एंड बी लाइक तेरे को बोला कल ऐसे ढूंढ और तू ढूंढ के ले आया कैमरा, और तू कमा के दिखाया मेरे को तूने किया. नाउ आई टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. नाउ आई टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. अब इसके बाद तेरे को ये करना है, अब तू ये मत कर, अब तू जॉब नहीं करेगा. जॉब क्यों नहीं करनी, पैसे कैसे कमाऊंगा? नहीं, तू जॉब करेगा, फ्री में करेगा. क्यों? राइट. फिर वो समझेंगे ये कॉन्सेप्ट. अच्छा, गॉट इट. राइट. So basically what I'm understanding is you have to understand who not how and then accessible who. Yeah. और दूसरी बात, अगर आप उस एक्सक्यूज वाली कैटेगरी में, तो बात वहीं खत्म. उसके बाद तो बात ही नहीं करनी. बट इफ यू रियली वांट टू फिगर समथिंग आउट, देन ऑफ कोर्स यू कैन, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड द हु. एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड द हु, यू वुड नो व्हाट इज इट दैट यू आर सपोज्ड टू डू. कुछ तो गाइडेंस मिलेगा. 0 to 1 तो होगा. एग्जैक्टली. अच्छा ये बताओ कि आजकल हर बच्चा भी ये सोचता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे चला जाऊं, क्या वहां कोई लेवरेज मिल सकता है इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अर्ली? राइट. सो अब जो एक्सक्यूज वाले नहीं है उन लोगों की बात करते हैं. उन लोगों की. राइट. कि यार अब हिमांशु को एक्सेसिबल तो नहीं है, क्या करूं? आई गिव यू सिंपल बेस्ट थिंग. इफ यू आर 18, 17, 19, 20 व्हाटएवर यू आर राइट नाउ, आप पढ़ रहे हो. सबसे बड़ा एक्सक्यूज मेरी पढ़ाई चल रही है. नंबर 2 मेरे पापा नहीं मानेंगे. तीसरा मेरे पे पैसा नहीं. चौथा टाइम नहीं बचता, पूरे स्कूल कॉलेज में होमवर्क में निकल जाता है. बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है. व्हाटएवर यू लर्निंग इन स्कूल or whatever you read or whatever you went through, just document it on 15 minutes every single day on YouTube for the rest of your career. अगर 18 पे आप ये YouTube चैनल चालू करते हो जिसमें आपने शेरलॉक होम्स की कॉमिक पढ़ी, आप वो बता दो कि मैंने आज ये पढ़ा, ये स्टोरी थी. अगर आपने फिजिक्स से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो सिखा दो. आप अपना रिवाइज कर रहे हो. रिवीजन रोज करोगे आप पढ़ाई का, ठीक है. आप रिवीजन रोज करोगे जो आपने देखा, आपको बस रिवाइज करना YouTube के सामने. डोंट एडिट द वीडियो, डोंट ट्राई SEO, डोंट डू एनी ऑफ दैट शिट. सिंपली पोस्ट वीडियोस एंड सिंपली पुट अ टाइटल. डोंट मेक अ थंबनेल ऑल्सो. मैं ये बोल रहा हूँ, फोन तुम्हारे पास है. अब ये झूठ मत बोलना कि मेरे पास फोन भी नहीं है. तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा कोई ना कोई एक्सेसिबल फोन है. जस्ट टेक अ फोन, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, इट्स फ्री एंड स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस. अगर तुम 18 से 24 को कर लो, 24 यू आर फाइनेंशियली फ्री. नोबडी कैन स्टॉप यू बिकॉज यू हैव अ ब्रांड बाय देन.
Correct. If not a brand, you at least know how you have at least built a habit and a mindset of consistency. It's like मैंने एक काम 6 साल किया, तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, तुम जिम 6 साल कर लोगे, तुम काम 6 साल कर लोगे, तुम एक बिजनेस 6 साल कर लोगे, because you have done something 6 years and your brain has a reference of that. I hope you got the answer. How to start a business as a teenager. He just gave you the idea. क्या करना है? अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो पॉज करो, वापस जाओ, दोबारा सुनो. You got to understand this. लेकिन उसके लिए फिर वो होना चाहिए कि I'm gonna do something for at least a long period of time. अब आजकल क्या ना वो जल्दी ग्रेटिफिकेशन, immediate gratification. अगर एक्सक्यूज कैटेगरी, अरे यार मुझे व्यूज नहीं आ रहे, मैंने तो बोला नहीं व्यूज लाने, यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं, तो मैंने को सब्सक्राइबर लाने, मैंने क्या बोला 6 साल करना है. I did not tell you what to do. I did not tell you क्या चाहिए. मैंने बोला 6 साल करो, 6 साल बाद मिलते हैं. अगर 6 साल के लिए कर लो और कुछ नहीं हुआ तो मेरे से पैसे ले जाना. That's brilliant. Just show me a video every single day for 6 years and don't take money from me. I absolutely vouch for what you're saying. Absolutely, from my own experience, what he's saying is indeed correct. And if you try this, you'll see the results. हिमांशु एक बात बताओ. ठीक है, सोशल मीडिया एक रास्ता है, यूट्यूब में भी एक रास्ता है. बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस कर नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि बिजनेस करने के लिए कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया चाहिए. तो क्या वाकई हर बिजनेस के लिए में आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया चाहिए होता है? कैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी शख्स का? सपोज समबडी स्टक इन अ जॉब. सपोज मैं सीए हूं, जब मैं सीए बना उसके बाद स्ट्रेट ट्रांजिशन जॉब, क्योंकि जाते ही पैसा इमीडिएट मिल रहा है. लेकिन फिर आपको पता है कि बिजनेस करना है, कुछ करना है, ये दिस इज नॉट 9 to this इज नॉट, आई कैन नॉट लिव लाइक दिस. मगर क्या करे? वो काम क्या होगा कुछ नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं है. तो ऐसा शख्स, व्हाट वुड बी योर सजेशन टू समबडी हु हैज नो क्लैरिटी, कुछ नहीं पता क्या करना है, लेकिन ये नहीं करना, ये 9 to 5 नहीं होगा मुझसे, क्या सजेशन है उस आदमी के लिए जो ऐसा सोचता है? कहां स्टार्ट करे? Now I might get a lot of hate for this, but I'm also going to say this. Ideas is the biggest scam word you can ever use, because ये वर्ड स्टार्टअप वर्ल्ड में, सिलिकॉन वैली वर्ल्ड में आइडियाज बोल के उस वर्ड को करप्ट कर दिया गया है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज आइडिया. आइडियाज आर शिट. इट्स वर्थ नॉट अ सिंगल पेनी. व्हाट इज वर्थ इज अ प्रॉब्लम. डोंट लुक फॉर आइडिया, लुक फॉर अ प्रॉब्लम. यू विल ऑटोमेटिकली गेट एन आइडिया. एक इतना घटिया एग्जाम्पल दूंगा, मानोगे नहीं. एक मेरा दोस्त है, उसने ये आइडिया बोला, मेरे को आइडिया नहीं आता, तू तो बड़ा बन गया, हमको टाइम नहीं आता. ये वो मतलब आइडिया कुछ होता ही नहीं, प्रॉब्लम देखना. देखो व्हाट इन योर डेली लाइफ यू सी एज अ प्रॉब्लम एंड डोंट टेल मी देयर इज नो प्रॉब्लम्स. वरना तुम अपनी लाइफ बेस्ट जी रहे होते अभी, कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है. तुम उठे यार पीठ दर्द हो रही है, तुम ये करे यार माइक टेढ़ा नहीं हो रहा. एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट बड़ा होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम हाई टिकट बेचो, भूल जाओ सब. जस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर 10 people. If you can solve a problem for 10 people, you'll automatically solve a problem for 100 people, and then 1,000 people, and then a billion people, and you can become a billionaire with that. As simple as that. To become a billionaire, you solve a problem for 1 billion people. Facebook solves a problem of 1 billion people. Netflix solves a problem of 1 billion people. Super. Apple solves a problem of 1 billion people. If you can solve a problem of 1 billion people, you are a billionaire. Point end. चालू 10 से करना पड़ेगा, वो भी क्लियर है. यू कैन नॉट गेट आइडिया ऑफ 1 बिलियन लोगों की लाइफ चेंज करूंगा. भाई तूने 10 लोगों से अपनी लाइफ में मिला है, तू क्या 1 बिलियन लोग? ट्रू. 4 लोगों के सामने वो खड़ा कर देंगे, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तुम्हें. क्या बिलियनर लोग? 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. मेरा दोस्त है, नाखून खाता है. बोले यार मैं ना परसों डेट पे गया था और मेरे को बात करके थोड़ा नर्वस हो रहा था, तो मैं नाखून खा रहा था. मुझे और उसने टोका, मुझे 2-3 बार टोका. मुझे बहुत अजीब लग रहा था यार, मेरे को आदत छोड़नी है. That's your problem. That's your fucking idea. Go implement on it. Absolutely. आप मानोगे नहीं उसने क्या किया. He started thinking क्या करूँ, एक प्रोडक्ट बनाऊंगा या कुछ करूंगा. उसने अपने घर पे MVP बनाया. उसने मेरी मम्मी से पूछा यार नाखून नहीं खाऊं क्या करूं, नानी से पूछा क्या करूं, इनसे पूछा क्या करूं. गॉट सम आइडियाज. उसने एक MVP प्रोडक्ट बनाया, मेरे पास लाया. MVP मींस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. बेसिकली आप प्रोडक्ट को अच्छा नहीं बना रहे, आप प्रोडक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और वो बहुत घटिया हालत है. उसने विक्स की 2 डब्बी ली, उल्टी चिपका दी, तो एक साइड से इधर खुलेगा, एक साइड इधर खुलेगा. डन. एक साइड उसने विक्स रखा, एक साइड उसने सैनिटाइजर डाल दी और दोनों डिब्बियां बंद कर दी. बोले ये मेरा प्रोडक्ट है. व्हाट इज दिस? इज लाइक नाखून करते हो कोई बात नहीं, जस्ट ओपन विक्स साइज वाली डब्बी, हाथ में लगा लो, बाहर जाओगे सुगंध आएगी, नहीं करोगे. करेक्ट. गुड. करेक्ट. उल्टी साइड वाला खोल, इसको पूजा, सैनिटाइजर खुशबू आएगी, अब तू खा सकता है कुछ, क्योंकि अब मैंने विक्स लगा ली तो खा थोड़ा ना सकता हूँ मैं खाना या कुछ. उस साइड से रब कर ले, ये डन. राइट. हाँ. क्रेजी. टेस्ट इट आउट नाउ. मेरे को बढ़िया लग रहा है. अभी वो विक्स की ऑफिस से कोई अच्छा चीज यूज करेगा और सैनिटाइजर भी अच्छी चीज यूज करेगा. बट यू थॉट अबाउट इट, दैट्स नाइस. एब्सोल्युटली. अभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. देयर आर एटलीस्ट 1 million 2 million पीपल इन इंडिया हु सफर दिस प्रॉब्लम ऑफ नेल बाइटिंग.
गुड प्रोडक्ट, चालू कर, 100 लोगों को बेच, तेरे दोस्त में देख कौन ना कौन खाता है, उसको दे फ्री में दे, बोले यार चेक करना यार. नाउ हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट. इट इज आइडिया चेज नहीं करना, प्रॉब्लम चेज करनी है. तुम आइडिया के पीछे भागोगे, प्रॉब्लम तुम्हारे पीछे भागी लाइफ की. हाँ. पैसा, फेम, पावर कुछ नहीं मिल जाना. प्रॉब्लम भागी तुम्हारे पीछे, तुम प्रॉब्लम के पीछे भागो, आइडिया तुम्हारे पीछे भागेगा. आई मीन दिस इज अमेजिंग. और इनफैक्ट आपने 2-4 और गोल्ड नगेट्स दे दिए इस आंसर में कि यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू वांट टू बिल्ड द नेक्स्ट इंस्टाग्राम. भाई नहीं, रुक जा, 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर. तू शुरुआत वहां से कर, और अगर वहां से शुरुआत होती है तो तेरा 10 का 100 बनेगा, 100 का 10,000 भी बनेगा, और इवेंचुअली यू विल रीच टू द मिलियन नंबर. लेकिन ऐसा नहीं होता. फेसबुक, इंस्टाग्राम भी अगर शुरू हुआ तो एक छोटी सी कम्युनिटी के लिए ही शुरू हुआ था एक टाइम पर. क्रेजी. हिमांशु ये बताओ, लेकिन आज की तारीख में ब्रेन वॉशिंग बहुत ज्यादा है. आप चलाते हो तो आपको दिखता है जॉब में हो, आर यू वर्किंग इन योर जॉब, क्विट योर जॉब, स्टार्ट अ बिजनेस, फॉलो योर पैशन. इज इट लाइक दैट इजी कि आप, पहली बात तो जैसे आपने कहा आइडिया इज ओवररेटेड, ये पैशन भी ओवररेटेड है क्या? कि हर आदमी ये कह रहा है फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन. अब यू रन मल्टीपल बिजनेसेस, यू रन मल्टीपल कंपनीज, क्या एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट पैशन? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. दूसरा, क्या ओवर टाइम पैशन चेंज नहीं होते? एक टाइम पे इंसान किसी चीज के लिए पैशनेट है, कुछ समय के बाद उस चीज के लिए पैशनेट नहीं, उसका पैशन बदल गया. तो क्या एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन पैशन ओनली, या ऐसा नहीं है? एज एन एंटरप्रेन्योर पैशन पर चीजें बिल्ड होती है या कुछ और है? Again, I might get a lot of hate, but I'm going to say this. If you want to live a happy life, follow your passion. If you want to live a successful life, follow problems. Right? आप एक बिजनेस ओनर है, मेरा दोस्त है, उसके पापा हैं. He has an annual turnover of 200 crores approximately. उनका धंधा सीमेंट का. आपको लगता है वो सीमेंट के लिए पैशनेट है? आपको लगता है जो माइक बनाता है वो माइक के लिए पैशनेट है? आपको लगता है इसने मग बनाया वो मग के लिए पैशनेट है? आपको लगता है इसने शर्ट बनाई वो पैशनेट है, यार शर्ट बना रहा हूं? नो. राइट? पैशन विल अलाउ पीस, पैशन विल अलाउ फुलफिलमेंट, पैशन विल अलाउ हैप्पीनेस, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट पैशन अलाउज मनी. ट्रू. टू गेट मनी फ्रॉम द मार्केट डज नॉट केयर तुम पैशनेट हो या नहीं हो. द मार्केट डज नॉट केयर तुम्हारा ये बचपन से पैशन था कि ये भी पैशन बना है. द मार्केट डज नॉट केयर तुम्हारा पैशन फ्यूचर में क्या होगा. द मार्केट केयर्स मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं. अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और उसके ऊपर तुम पैशनेट हो तो बहुत बढ़िया. पर अगर तुम नहीं भी हो एंड स्टिल यू आर बिल्डिंग दैट बिजनेस, इट्स फाइन बिकॉज यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द मार्केट. एग्जाम्पल, हम अभी एक रिसेंटली ई-कॉम ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं. ठीक है. नाउ आई डोंट डू ई-कॉम कंसल्टेंसी, बट मेरे को टेस्ट करना है, हम लॉन्च करने वाले हैं. ठीक है. वो जो हम ई-कॉम बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज अबाउट पोस्टर्स, लाइक मोटिवेशनल पोस्टर्स एंड ऑल. डू यू थिंक आई एम लाइक पैशनेट अबाउट पेपर और GSM क्वालिटी ऑफ पेपर? नो, ऑफ कोर्स नॉट. I don't give a damn about what's the GSM of this paper and all. I give a damn about, I want to solve the problem of e-com for myself. मुझे क्यूरियोसिटी, एक होता कैसे, तो मैं उसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूँ. That's my passion. But the vehicle can be anything. The vehicle, so the passion of people is to make money. The passion of people is to live with freedom. The passion of people is to provide to their family. That is your passion. That is what you're passionate about. You're passionate about traveling. You're passionate about buying new things. But the vehicle can be anything. Correct. If you're passionate about cars, very good. But to buy that car, you need money. The vehicle can be anything to buy that car, right? It can be a business, it can be a job, it can be investment, it can be trading, whatever you want to do. So we need to see for ourselves what a profession is not a passion, but the thing you want is technically you can passionate be about. So it's about you are passionate about things, not passionate about a profession, because profession change with life. Indeed. Right? अभी for example, क्या आपको 7वीं की उम्र पता था आप CA बनने वाले हो? When you were 7 years old? Of course. No. So, but when you are doing the CA pursuit, were you not passionate about it? 50-50. What does that mean? Right? So it simply means a transition game, right? It's cycles of life. True. Right? Your passion changes, your direction in life changes. For example, you're passionate right now about cars. खुदा ना खास्ता कल आपकी मॉम की डेथ हो गई, अब पैशन कहाँ गया? Gone. You see? Out of the park. Right? That's how it happens. True. Absolutely. I hope this makes sense to everybody who's listening to this. It does to me. ये कहा जाता है कि 2023-24 का जो बिजनेस है वो बिजनेस है कोचिंग. 2023 में सुना बहुत, स्पेशली पोस्ट कोविड,
2024 में भी यही सुन रहे हैं कि भाई जो बिजनेस है इस वक्त का, इस जमाने का, वो है कोचिंग। तो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग इज दैट बिजनेस? इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहता हूं, इज कोचिंग अ बिजनेस? क्या इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन आई से आई एम अ कोच, एम आई रियली एन एंटरप्रेन्योर और एम आई नॉट एन एंटरप्रेन्योर? आई एम मोर लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं दो चीज, माई 2 क्वेश्चंस। नंबर 1, क्या वाकई कोचिंग इज द बिजनेस या ये ओवर हाइप्ड किया हुआ है, अननेसेसरीली ओवर मार्केट किया हुआ है? अगेन मे बी आई कैन यूज दैट वर्ड, ब्रेन वॉशिंग की हुई है ऑफ द पीपल हु वांट टू समथिंग ऑन देयर ओन बिकॉज़ दे आर फेड अप विद देयर 9 to 5 लाइफ। और दूसरा, क्या कोचिंग वाकई बिजनेस है या ये अगेन ये नहीं है, इट्स नॉट अ रियल हार्डकोर एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? Coaching is not a business, coaching is a profession. When you write the word coach business नहीं है, coach एक प्रोफेशन है जो तुमने खुद के लिए लिया है. The moment it's a profession, you're self-employed. A CA is a self-employed, a lawyer is a self-employed. You're self-employed. You're not a business owner. Coach is a self-employed. A coach is self-employed. True. The moment you stop running ads and stop using your face, your business is gone. तो तुम प्रोफेशनल हो. बिजनेस ओनर मत बोलो खुद को. ये क्लैरिटी कर लो आज. ये समझ लो कि जहां तुम्हारा फेस गया वो गया. But a ed tech can be a business. A service can be a business. A academy can be a business. A franchisee academy can be a business. So क्या कोच बनना गलत है? नहीं. स्टार्ट करने के प्रोफेशनल हो तुम, क्या प्रॉब्लम है? आज तुम सीए कल सीए फर्म खोलोगे, आज तुम लॉयर कल लॉयर फर्म खोलोगे, आज तुम डॉक्टर कल हॉस्पिटल खोलोगे. यू स्टार्ट विद द प्रोफेशन बट यू एंड विद द बिजनेस. यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी फर्स्ट. तो बहुत सारे लोग कोच बनते हैं और बोलते हैं अब मेरा कोचिंग बिजनेस है. कोचिंग प्रोफेशन है. तुम इतने इवॉल्व नहीं हुए समझने के लिए कि ये बिजनेस रन्स विदाउट द बिजनेस ओनर. My simple question is, can your coaching business grow for next 1 year without you? Forget that. No. For the next 1 month. No. एक वेबिनार किया नहीं किया, आपका काम रुक गया. खत्म हो गया. True. That means it's not a business. It's a profession that you're doing. Which is fine. गलत नहीं है उसमें कुछ. Which is fine. But stop saying it to yourself. दुनिया को बोलो कोचिंग बिजनेस से आता हूँ, तुम खुद को गधा मत बनाओ. Right? तो तुम्हें पता है कि अच्छा मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ. Nice. Now the next question is, how do I turn this into business? Because what I'm working on right now is that कि मैं अभी कोचिंग प्रोफेशन में हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ. I'm a coach, I'm a professional, I'm a consultant, I'm a professional. I sell my time to make money, though my per hour value is very high. Right? साल का मुझे 40 लाख को दे रहा है प्लस जीएसटी फॉर कंसल्टिंग. मेरी पर आवर वैल्यू बहुत हाई है क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज आ गई है जिसको लोग जिसको चाहते हैं. सो आई कैन चार्ज अ लॉट फॉर दैट. बट आई एम प्रोफेशनल. आई नो दैट इनसाइड मी दैट आई एम सेलिंग माय टाइम. बट मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ मैं बिजनेस ओनर हूँ. राइट? वहाँ मेरे 3 डेवलपर बैठे हैं, किसी को पता भी नहीं आई ओन दैट सॉफ्टवेयर एंड पीपल आर यूजिंग इट. जहाँ मेरी एजेंसीज हैं, मैंने एजेंसी एक्वायर करी है, मैंने एजेंसी खुद बनाई है. राइट? और अभी मेरे पास 8 एजेंसीज हैं टोटल. राइट? एंड ईच एजेंसी डज अबाउट 10 lakhs a month मिनिमम. वहाँ बिजनेस ओनर, नोबडी नोज हिमांशु की है, बट दे टेक सर्विस फ्रॉम दैट. कंप्लीटली ऑटोमेटेड. कल को मैं 24 घंटे सोऊं फॉर 1 month, नोबडी केस पैसा उसमें बनेगा और मुझे आएगा. True. So you need to see what is for you. Why I am a coach right now? Because I love that profession. मुझे मजा आ रहा है. Because when my friend's father used to coach me on that, उसको तब कोचिंग बोलते मुझे पता नहीं था. When he used to give me advice or whatever you want to call it, he used to give me that. I used to feel like. अब मुझे लगता है अपन भी करते हैं, मजा आ रहा है. ठीक है, इसका पैसा मिल रहा है और बढ़िया बात है. Correct. And you're transforming lives. Yeah, and I'm transforming. I'm creating the impact I want. Yeah. But क्या मैं कोच प्रोफेशन जीवन में रखने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं. Right? I'm a business owner at the end. I'm not a creator. I'm very clear about it. Right? तो मैं इसको पूरी लाइफ नहीं करने वाला हूँ. एक टाइम बाद I'll transition into a business और लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा. That's how it works. Indeed. हिमांशु, बहुत सारे जैसे you work with a lot of coaches, you work with a lot of entrepreneurs. What is the problem that you find? कि problem क्या है? A lot of people are not able to scale up. There are very, very few people who are able to scale their coaching profession or their business, right? Very few people who are able to scale things up. बहुत सारे लोग कहना कि वो एक जगह जाके अटक जाते हैं, बस वो वहीं चलता रहता है, उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो उसी में चलता रहता है. सो हाउ कैन वन टेक दैट लीप कि ये छोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे गया? वो अटकता क्यों है, कहाँ अटकता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन? I started this coaching business, what people call, 4 years back. And first year, पूरे साल में मैंने किया होगा approximately 2.3 lakhs revenue पूरे साल में. Today my per day ad spend is 3.5 to 4 lakhs per day. Per day. Right? That people make in like a month. True. That's my ad spend. So forget what is coming back. That's why everyone sees the ads everywhere. True. Now,
इस पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस. नंबर 1, व्हाट डू यू वांट, पीपल आर नॉट क्लियर ऑन दैट. कोचेस डोंट नो व्हाट दे वांट. उनका ऐसा है बस मेरे कोर्स लोग खरीद लें. क्यों? एंड देन अगर तुम्हारा क्लियर है कि व्हाट डू आई वांट, सेकेंडली व्हाई डू यू वांट इट. पीपल आर एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया ऑन व्हाई दे वांट इट. सर मेरे कोर्स में 1000 लोग करवा दो. क्यों? उनको हेल्प मिलेगी. सक्सेस रेट क्या तेरा? वो क्या? कंप्लीशन रेट क्या है? खोल LMS 4%. काय का इम्पैक्ट? यू आर लूटिंग पीपल. खोलो ना अपना LMS. When you show your ads, when you do all of that, why don't you open your LMS and show your course completion rate? LMS पे है ही नहीं ना कुछ, अब डाला ही नहीं LMS पे, तो वो ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं. वीडियो शेयर कर, चलो आप कैसे LMS मैंने मान लिया. हाँ. उस पर कितना % लोग कंप्लीट कर रहे हैं. गो ओपन इट एंड इफ यू हैव द गट्स पोस्ट इट. मैं डालता हूँ, वर्कशॉप में दिखाता हूँ, ये लो सक्सेस रेट, ये लो कंप्लीशन रेट, ये लो नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग ट्रैक्ड, ये लो नंबर ऑफ एवरीथिंग. 1800 लोग लाइव बैठ के सीख रहे हैं अभी. सेकंड डे पे 1600 लोग बैठ के सीख रहे हैं. थर्ड डे पे 1500 लोग बैठ के सीख रहे हैं. ये लो रिटेंशन रेट. बीट इट. Why do you want it? You're saying impact. I want to do 1 million people, 10 million. दिखाना भाई, open your LMS and post a screenshot on your Facebook, LinkedIn. That is your completion rate. वो नहीं कर पाऊंगा. ये कैसे करता हूँ यार? इसलिए मैं लाइव पढ़ाता हूँ. I do a 3-day event, 7,000 रुपये लेता हूँ, but I teach it live. बॉस मेरे को कंप्लीट करवाना है, मुझे एक्शन दिलवाना है लोगों को. I have 3,800 video testimonials. Imagine. That's huge. 3,800. Yeah. Right? दिखा दो भाई. I really want to create the impact. I'm very clear on my why I'm doing this. मैं impact बोलता हूँ तो करना भी है भाई, बोलने की बात नहीं है. 40 लाख मांगता हूँ, जिसने 40 लाख दिए पूछो उससे. He'll tell you how much value has got. 72 people have paid that amount. So Right? basically what you're saying is that why is missing, and eventually the success rate, the eventual outcome is also Why missing. नहीं है तो so it's maths and psychology, right? Psychology is dependent on maths and maths is dependent on psychology. Every business is maths and psychology, right? And your whole life is maths and psychology. For example, this podcast game is a maths and psychology game. Psychology हम क्या बात कर रहे हैं, हम retain कर पा रहे हैं कि नहीं हम, you know how we are talking, is there emotion, is there stories. Maths is YouTube dashboard में क्या दिख रहा है, CTR क्या था, thumbnail ratio क्या था, CPM क्या मिल रहा था, RPM क्या था. So everything is maths and business, maths and psychology. Similarly, coaching business is also maths and psychology. Psychology is, are people connecting to you? Are they finding value in it? Are you able to make them happy? Is your team happy with you? Maths part is your economics right? But that means the whole funnel and the whole system that you have said, क्या उसके numbers सही है, क्या वो numbers ठीक है या नहीं है, right? तो हमें ये समझना पड़ेगा that when your what, you know what to do, which is the maths part, is not clear, your why would be unclear. And if your why to do, the psychology part, क्यों कर रहा हूँ मैं, आपकी psychology क्या है, investor की psychology क्या है, customer की psychology क्या है, team की psychology क्या है, अगर वो भी नहीं है तो what में confusion होगा. The point is getting absolutely clear on psychology part, which will eventually make you clear on the maths part, which will eventually make you more clear on the psychology part, and then maths part and then psychology part. तो आप दोनों में clear होते जाओगे. But psychology चालू करना, मैं कर क्यों रहा हूँ, ये है क्यों? What is the purpose of this? Is this just the purpose of scaling ad spend and making more money, or is the purpose of यार 38 decimal ले 38,000 करेंगे, right? Is it about कि यार इनको ट्रैक करके ना इनको फंडिंग देंगे, right? Just to tell you on your podcast for the first time, I am getting out of the coaching business. I am getting into the business of making people understand that don't buy courses. I'll pay you to learn from me. Let me repeat. We're getting into something called as I'll pay you to learn from me, and not 20 rupees as cashback, but lakh rupees. I'll pay you lakh rupees to learn from me. That's what we're getting into, to disrupt the industry. Yeah. Because मेरी सक्सेस रेट ज़्यादा मुझे पता है. I know I'm good. Why am I charging people? तो मैंने ये सोचा है फ्री में देंगे, पैसा देंगे लोगों को सीरीज से, उसके पीछे बिजनेस मॉडल है. साइकोलॉजी क्लियर हुई तो अब उसके पीछे बिजनेस मॉडल है, विच इज द मैथ्स पार्ट नाउ. So are we saying कि बहुत सारे coaches, entrepreneurs वो मैथ्स पार्ट सीखना नहीं चाहते, उनको वो पता नहीं है, अगेन दे आर इनटू कोचिंग बिकॉज़ दे लाइक इट एंड दैट्स प्रीटी मच इट. उसके आगे वो मैथमेटिक्स, वो नॉट लाइक इट, इट्स इजी राइट नाउ. हाँ, आई कॉल दिस कोचेस कोविड कोचेस. ये कोविड में आया, कोविड में चले गए, जो थोड़ा बहुत ढंग का काम किया तो अभी तक चल रहे हैं. हाँ, Just wait for some time. Let Facebook increase their CPM by 200%. ठीक बात. देखते कौन टिकता है. ठीक, मैं तो बहुत बैठा मुश्किल. हाँ, 3 साल पहले चालू किया था, 1000 लोग थे मेरी नीश में. आज गिनती से 4 बचे होंगे. राइट, तो मैं तो बैठा हूँ. एक्स खेल मतलब होंगे बहुत सारे, बट एक्स खेल 4 बचे हैं. राइट, आज अगर 72 people have paid 40 lakhs in incremental value, मतलब सबने 14 दिया, किसी ने 10, किसी ने 18, फिर विद टाइम देखते कितने टाइम बाद कौन कितना चार्ज कर रहा है. आई एम सिटिंग हियर ब्रो. 1 साल बाद यही बैठा हूँ.
Let's see if Facebook increases CPM by 200%, are you over here? Interesting. That's how it interesting. That's very interesting. Okay. हिमांशु एक बात बताओ, ये मार्केट में ये बहुत सुनते हैं, इनफैक्ट आप भी इस बात को बहुत एडवोकेट करते हो, हाई टिकट. Yeah. You got to have a high ticket product. Yeah. हाँ, हाई टिकट कर नहीं पाता सामने वाला, वो हाई टिकट पे जाता है, कोई परचेज नहीं करता, उसके बाद वो लो टिकट पे आता है, ज्यादा लो जाता है तो एड स्पेंड जस्टिफाई नहीं होता, वो उसका आरओई नहीं निकलता, वो ब्रेक इवन ही नहीं हो रहा, इसीलिए वो बिजनेस के बाहर भी हो रहा है. ये जो हाई टिकट का कॉन्सेप्ट है, वो टू अंडरस्टैंड दिस. हाई टिकट क्या है और कैसे कोई अपने बिजनेस पे से इंप्लीमेंट कर सकता है? Number one question, what is high ticket? High ticket is a perception and high ticket is not a reality. सर आपके लिए क्या 20 रुपए हाई टिकट है? पर क्या एक tier 3 बच्चा जो अभी 18 साल का उसके लिए एक कोर्स 20 का हाई टिकट है? So high ticket is a perception. So the first question, what is high ticket? I'll give you the straight answer. 10% of annual income of your customer is your high ticket. उसका 10%, 40-50 लाख. I can charge it बिना टेंशन के. राइट अगर मैं टीयर 3 टारगेट कर रहा हूं जहां पे एक बच्चे की पॉकेट में 3,000 रुपए महीना है, साल 36,000 होता है, तो हाईएस्ट कोर्स आई वुड सेल इज 3,600 टू प्रोवाइड इक्वल वैल्यू. तो इजी कन्वर्जन आएंगे, आसानी चलेगा. पर अब लोग ट्राई करते हैं 50,000 टीयर 3 बच्चे लेने का और फिर उनका फल मरता है बिकॉज यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हाई टिकट. अभी समझ में आएगा तो ऑडियंस की क्लैरिटी नहीं है, पता ही नहीं ना. वाई क्लियर नहीं है तो व्हाट कैसे होगा? क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है तो व्हाट क्लियर नहीं. व्हाट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है भाई, हु इज योर टारगेट मार्केट, व्हाट डू दे अर्न, पता ही नहीं. सो नाउ यू नो. अच्छा मैं सी नितिन सोनी हूँ, मैं बिजनेस ओनर को सर्व करता हूँ. एक बिजनेस ओनर जो मेरा टारगेट मार्केट है जैसे एसएमई एमएसएमई या जो भी है, दे डू लेट्स से 20 crore a year. I can charge 2 crore. Right? Because I feel 10% of the income should go into something like this. If it's justifiable. That's your high ticket. Number one question, what is high ticket? Number two question, should we do it? Answer is yes and no both. If you are starting out and if you have the real expertise and if you feel you can get paid for that, yes. If you feel भाई मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहली बार कर रहा हूँ, test it out. Do low ticket or do free even. Does not matter. You're trying to understand जो मैं करता हूँ चलता है कि नहीं. And third mindset that comes, third question that comes is, मैं हाई टिकट करूँ कि लो टिकट करूँ, मैं वेबिनार करूँ कि VSL करूँ, मैं कॉल बुकिंग करूँ कि वर्कशॉप करूँ. I always tell this to people that you have been brainwashed by other people with their mechanism because they want to sell their course in the end. तो हाई टिकट वाले बोलेंगे हाई टिकट ले लो, लो टिकट वाले लो टिकट करो, डिजिटल प्रोडक्ट वाले डिजिटल प्रोडक्ट बेचो, वेबिनार वाले बोलेंगे वेबिनार करो, वर्कशॉप वाले वर्कशॉप. आप कंफ्यूज जाओगे. मैं सिंपल बोलता हूँ, इट इज नॉट अबाउट द और, इट इज अबाउट द एंड. इट इज नॉट और माइंडसेट, इट्स एंड माइंडसेट. हाई टिकट और लो टिकट गलत, हाई टिकट एंड लो टिकट करना है. आई डू 299, आई डू 40 lakhs. बेच रहा कोई नहीं है 40 lakhs इन माय निश? नो. 299 मेरी स्किल पे कोई चला रहा है? नो. तो इट्स एंड माइंडसेट, नॉट और. आई एम नॉट और पर्सन, आई एम एंड पर्सन. मैं लो टिकट भी करूंगा, हाई टिकट भी करूंगा, वर्कशॉप भी करूंगा, कॉल भी करूंगा, मैं वेबिनार भी करूंगा फ्री और वेबिनार करूंगा पेड. It's an end mindset, no? Because why you are trying to constrain your vehicles when you have infinite of them to reach the goal? What is important? The goal of the vehicle. The goal, right? You want to reach Chennai. अब तुम ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, कार से जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पहुंचना है ना उधर. मैं ये बोलता हूँ 3 ऑप्शन होने चाहिए. जब जहां की जरूरत है वो यूज करेंगे. मैं एयरपोर्ट तक कैब से जाऊंगा, वहां से फ्लाइट पकड़ूंगा, फ्लाइट से वापस कैब से चेन्नई पहुंच जाऊंगा. हो गया मेरा काम? नहीं, पर मैं तो फ्लाइट के अगेंस्ट हूं. हाँ तो जाओ फिर कैब से लो 3 साल. Then don't complain about it. Have an and mindset, not an or mindset, because or cripples you. Pretty much it. I hope that gives you clarity on high ticket. क्या है, क्या करना है, कैसे करना है. हिमांशु, a question for you. 1 लाख ईमेल सब्सक्राइबर या 1 लाख सोशल मीडिया फॉलोअर? Email subscribers. ऐसा क्यों? Power ज़्यादा है. Here's the case. If you have 1 lakh followers, if you post a story, how many people will watch? 20% of that, which is 20,000. How many people will click on that? 10% of that, which is 2,000. Here's the power. If I have an email list, 1 lakh people, what can be a good open rate? 25-30%? 30,000 people click. What can be a good click rate? 5%? How many will click? Number 2 part. I don't own Instagram. True. So the moment Instagram goes away, my followers are gone. TikTok पे बतेरे फॉलोवर थे लोगों के, गायब रात भर में, खत्म, ब्रांड खत्म. Correct. Right? Number 3. I cannot control what I can give on Instagram. मैंने ज़करबर्ग की फोटो लगा दी, अकाउंट बैन. Correct. मैंने फेसबुक में गलत लिखा, अकाउंट डिलीट. बिल्कुल. मैंने कुछ लिख दिया, फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त था तो मैंने उसके गले में फोटो ली, मतलब किडनैपिंग हिम. हाँ. मैं उन्हें स्टोरी डिलीट कर दिया. मतलब अरे पर मेरी तो जोक है ना, ठीक. but they don't understand it. सिलेक्ट तो मेरे दिया. पर ईमेल I can write I kidnap my friend. That can be a subject line. It works.
Yeah. So email is more power. So email has more power. Makes sense. When you say email has more power, that means you're a big time email fan, right? मार्केट के अंदर तो कोई बात ही नहीं कर रहा ईमेल की. एवरीबडी इज सेइंग आप यूट्यूब सीखो, आप सोशल मीडिया सीखो, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर होने चाहिए. बट द रियल बेस ऑन विच यू रियली बिल्ड अ बिजनेस, आई गेस, इज योर ईमेल सब्सक्राइबर. Yeah. इसकी कोई बात नहीं कर रहा है. तो अगेन क्या ये भी वही कोर्सेज सेल वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा है? यूट्यूब का कोर्स बेचो, इंस्टाग्राम का कोर्स बेचो, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग, नोबडी इज फोकसिंग ऑन ईमेल मार्केटिंग. आई एम प्रीटी मच श्योर, मैं इतने सारे क्रिएटर्स को जानता हूंगा जिनके शायद लाखों में फॉलोवर्स हैं लेकिन ईमेल सब्सक्राइबर नहीं है. तो ये क्या चल रहा है? I had 700 followers on my Instagram when I used to operate on a list of 80,000 people. Customers. A list, मतलब मैं लीड लिस्ट की कभी बात नहीं करता, मैं कस्टमर लिस्ट की बात करता हूँ. I never pay on leads. My lowest price is $299. If you want to know something watch for free, go Instagram, YouTube, वहाँ पे देख लो. फ्री हमारा कुछ नहीं है. I have the lowest ticket is $299. अभी के लिए तो, for जब ये रिकॉर्ड हो रहा था तब तक के लिए तो 299 is the basic ticket. और हमने बीच में 9 भी किया था, हमने 19 भी चलाया, हमने बहुत कुछ टेस्ट करने के लिए बहुत कुछ चलाया. I have today a list of 3.5-4 lakh people. The amount of power I hold to build a company and destroy a company is immense. I am buying agency, I'll tell you what. Let's say एक email marketing agency है, मेरे पास कोचेज इन सब की लिस्ट है, मैं उसको एक्वायर करता हूँ, मैं बोलता हूँ आज से 50% मेरा, ये पैसा तेरा रख, जो भी है, इक्विटी हो गई. Awesome. कितना करता है अभी तो 8 lakhs per month. What's your offer? 20,000 a month. Cool. Send an email to my list of 4 lakh people. Write an email. Hey, I've got a new email marketer. Good work. I've tested it. It's working nice. Here's a link. Book a call. 4 lakh people का email गया है. How many Game change रातों रात. वो business just goes through the roof. Absolutely. तो जिसका business है वो खुश, Correct. मैं खुश, मैंने पैसा लगाया, मैं खुश, मेरा डबल ट्रिपल जो भी होने वाला है. एंड जो email list है क्या वो खुश, because they got a new service provider who's really good and giving it for cheap. Thumbs on. I mean, the business that you're in, I'm sure you also come across a lot of CAs, lawyers, या professionals जो अपने काम में अच्छे हैं लेकिन उनको ये सब नहीं आता. How important it is for them to learn all of this. Email subscribers, how they communicate with people, have something on your page, landing page, website, so that people can opt in. All of the, how important do you think all of this is for anybody who wants to succeed as a professional or as a businessman? Yeah, I think it's the most important part because today's world is digital era. And in digital era, if you don't have all of this, then how are you surviving? The question is that. Right on, simple होता है कि यार मैं कैसे करूँगा, मुझसे कैसे होगा. Again, it's who not how. फिर वही बात, करूँ कैसे? Who not how. Just find a person who knows it. एक बच्चा ढूंढो अपनी गली में, इसको गूगल में बिजनेस आता है, उसको बोल भाई मेरा गूगल में बिजनेस सेट कर, मैं तेरे को 2 रेड बुल आज पिलाऊंगा. कर देगा वो बच्चा, उसको तो क्या है, 10 मिनट काम है उसके लिए. अगेन हु नॉट हाउ. मुझे ईमेल बनाना नहीं आता. हु नॉट हाउ. फाइंड द हु नोज दैट आंसर. Great. Right? Don't try to find the how because you'll waste your time. Does Himanshu read books? Yes, a lot. Like self-help? I feel there are 2 kinds of books, concept and skills. Concept is when I'm getting bored, I want to learn new concept. So I'll read a book like cyber analytics or breakthrough advertising or something like this. I want to learn a skill. For example, मेरा OTO पेज कन्वर्ट नहीं हो रहा है. Now, या मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा कॉल कन्वर्जन रेट कम है, या मेरा वेबिनार कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या मेरा टीम सही नहीं चल रहा है. Then I use skill books. So skill books is I pick when I'm in a problem, stress, selling, कुछ भी प्रॉब्लम आई लाइफ में, उसके ऊपर कोई ना कोई किताब किसी ने लिखी, एक्सपर्ट है, उसकी किताब उठाओ, उसी टाइम ऑर्डर करो, पढ़ना चालू करो, खत्म करो, प्रॉब्लम सॉल्व. दूसरा था कॉन्सेप्ट when I'm getting bored. So I have in my bag concept books normally, but I pick skill books. That's how it works. So it means कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किताबों में है. And if you are smart enough, you can find a book, order it on Amazon, next day delivered, you get the solution to the damn problem. Yeah. And you get it solved. Yeah. When I started business, I was stressed. Yeah. Because I didn't know what to do. Stress, books. Bestseller, 20,000 reviews. Order, कितना लगा? 220 रुपए. Steal. Get it. Read it. Oh, that's how you solve stress. Thank you. There you go. There you go. That's the power. The most underrated thing I would say. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना पावर हाउस भरा पड़ा है. किसी 55 साल के आदमी ने अपनी पूरी लाइफ में जो स्ट्रेस देखा है, उस स्ट्रेस को डिकोड करने के लिए एक किताब लिखी है जो आप रीड कर सकते हो मे बी 3 to 4 hours. Yeah. Like what else you want in life? वो भी 220 रुपए में. आपको क्या चाहिए लाइफ में? और मतलब I don't understand. हिमांशु, बहुत सारे एड्स देखता हूँ आपके. You talk about funnel. ये funnel क्या चीज है? यार फनल बहुत सिंपल सा गेम है. हम बेसिक भाषा में बात करते हैं. बिल्कुल आज से 10 साल पहले हम ड्राइव कर रहे होते हैं, अचानक से रेडियो पे आवाज बजती है, पाइए गोयला फर्नीचर से 50% डिस्काउंट. अरे वाह, गोयला फर्नीचर 50%, अभी जाता हूँ. कार घुमाई, AB रोड पे गए, कार लगाई,
कोयला फर्नीचर्स पे गए, एक सेल्समैन मिला, उसने बोला क्या देखना है सर? चेयर देखनी है। अच्छा आइए आइए, ये देखिए सोफा है, चेयर है, टेबल है, सब है। हाँ, ये पैक कर दो। अच्छा नाइस, थैंक यू। लीव किया, कार में डाला, घर चले गए। दैट्स अ फनल। फर्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट। गोयला फर्नीचर्स पे चाहिए ये। इंटरप्ट, पैटर्न इंटरप्ट, एडवर्टाइजिंग, break the pattern, get the person to listen. Awesome. Now make the person to come over there. Landing page, opt-in page, आने दो उसको, walk-in जिसको हम बोलते हैं. Salesman, the person who does the webinar, the call, the sales pitch, or whatever it is, the presentation, the whatever it is. The salesman sells the product. Delivery should be good. Once he reaches home, he should feel the chair is good. खत्म, ये funnel है. इसको ऑनलाइन कर दो, funnel बन गया. Number one, ads. Number two, opt-in page is something where you can opt in or get leads or get customers, whatever it is. Number three, there's a salesman or someone who can describe all your product or service in detail. Number four, they get a good product. Khatam. That's pretty much it. And it's this is one of the most ClickFunnels ने बड़ा famous किया funnels को. Yeah. International market. Yeah. Who are some of the people that you look up to? या जिनसे आप सीखते हो यार, ये I like these people यार, इनका काम बहुत बढ़िया है. I'm sure there must be few people across the globe who maybe would inspire you या जिनसे आप कुछ न कुछ learn कर पाते हो. Do you want to take few names? Yeah, I would take names of people that people don't know. Is because I believe more in underdogs than in more famous people. The more famous someone is, the chances are the more generic topic they'll touch on, because they want to cater to mass audience. Yeah. तो hence they are so famous. Yeah, because they are famous. तो 20,000 लोग बैठे हैं. अब उसकी गलती नहीं है. 20,000 लोग बैठे तो उनको ऐसे टॉपिक चूज करना पड़ेगा जो जनरल है, करना है, जिससे 20,000 लोग कनेक्ट हो पाए. बिल्कुल. But I like to learn from underdogs. जिसके सिर्फ 6 clients हैं, but each client pays him 70 lakhs a year for just email marketing. He knows stuff that nobody knows. True. He will tell me stuff Yeah. that nobody is near about, right? Yeah. So a lot of friends in mine were like outside India or in India and all of that. For example, I have this student of mine, Akhil Namdev. First a friend, now a student. 17 years old, अभी 18 का हो चुका है. 45 lakhs per month and does Facebook ads for other people. Makes 45 lakhs a month. Whoa. 17 में जब वो मेरे पास आया था, 17 की उम्र में, and he's like, भैया ये करता हूँ मैं, ऐसा ऐसा है. ना हो जाएगा, स्किल तेरे में स्किल है. Right now he runs my ads as well at 4 lakhs per day. He can manage it. Yeah. बोले कि मैंने बोला मैनेज हो जाएगा. अच्छा भैया क्लाइंट क्लोज हो गया, पैसे कहीं पे लूँ? मतलब बैंक अकाउंट में. पर मैं 17 को मेरा बैंक अकाउंट नहीं. मतलब वो शिट, ये तो भूल ही गया मैं. Take in your father's account right now. I'll figure out something later. Right. So very interesting work. Outside India, I have this friend of mine, Rishabh Sharma. Really great work. He is a creative designer. He creates ads and he's like a storyteller kind of. He likes to do that kind of work. I have one friend of mine, Aishwarya. She works in David Ogilvy and she's like the creative director over there. Again. Then I have one friend of mine, Stephen James. He is more into analytical stuff like Google Analytics and all of that. Crazy guy, has immense knowledge, right? So I know I'll say these kind of names because these guys have really contributed something in my life. But if you want to learn about some famous names who know their stuff that they're talking about, a lot of names. ClickFunnels, Russell Munson is one of the names. Simons is one of the name. Jason Capital is one of the name. Alan Sultanik is one of the name. What else? Good ones that you can go for. I think Dan Sullivan is a good one. Who not how guy, huh? Yeah. Good one. What else? Like just get to these 3-4 people. इतने लोग मेरे हिसाब से That's काफी है. more than enough. By the way, the names that he has given you already, that's more than enough. If you're smart enough to figure these people, find these people out on social media, and if you follow some of them, consume their content, become their subscriber, and see what they are doing, it would be more than enough for you. Here is my confirmation on it. Himanshu, आज अगर ये सब कुछ छूट जाए आपके हाथ से, कुछ ना हो, the position, the पैसा, the companies, the equity, the contacts, everything. You wake up tomorrow and you have nothing. Where would you start? What would you do? Learn sales and get a job of sales. Right. Very clear. So you mean sales is the number one thing to learn and to Take everything. I can build back it up in shorter time now because I just want a sales का job. मुझे बस एक फोन दे दो और एक सेल्स की जॉब दिलवा दो जहाँ पे लीड्स हो. And build it up all back again. So you mean sales is again, is it the backbone, right? Backbone? किसी भी काम को करने A के लिए business has 7 departments. Marketing, sales, operations, HR, finance, R&D, management. All the 6 departments take money out of the company. Marketing takes out, operation takes out, HR takes out, finance takes out. The only one department that brings money in the company is sales. And if you know sales, you're the rainmaker. And if you're a rainmaker, you'll be paid anything
because the business owner loves the rainmaker. That's true. Himanshu, probably my last question to you is on AI. खूब धमाल मच रहा है, GPT ने धमाल मचा रखा है. GPT 3.5 के बाद आया 4 और इनफैक्ट हर दूसरे दिन there are new tools on AI. I want to understand what is your take on AI और स्पेशली एक entrepreneur के perspective से what do you have to say कि क्या अपडेटेड रहना है AI पर. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा हूं, जो टूल किसी तरह से AI से कनेक्टेड भी नहीं है उसको भी AI बना के आजकल मार्केट में उतारा जा रहा है. करेक्ट, ये बहुत चल रहा है. yeah. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड ये AI क्या है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है टू बी अब्रेस्ट विद द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन AI, और डू यू वांट टू सजेस्ट सम टूल्स, सम थिंग्स दैट एन एंटरप्रेन्योर कैन डू, अ कोच कंसल्टेंट कैन डू टू टेक लेवरेज ऑफ दिस इनक्रेडिबल एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी? AI is the new computer of the world. Very simple explanation. आज से 40 साल पहले जाते जब कंप्यूटर्स नहीं थे, आप कंप्यूटर सीखना चालू करते हो, लोग बोलते कंप्यूटर स्कैम है, कंप्यूटर लोगों की जॉब खा जाएगा, कंप्यूटर तो बेकार चीज है, हाँ. इसको हटाओ. हाँ. आप और मैं, आप कंप्यूटर सीखना चालू करते हो, बोले यार देख एक्सेल शीट कुछ बनाया है, इसमें नई चीज आई है यार, इस पर लिख सकते हैं, इस पर सेव हो सकता है. बोले अरे नहीं भाई, अपना रजिस्टर पेपर है ना, ये अपनी फाइल है, इसके अंदर डालेंगे, लिखेंगे इसके अंदर, इतना बढ़िया ये अभी तक चलता आ रहा है. पागल हो गया तू, गलत चीज यूज कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है. Flashback 20 years. I don't know how to use computer. You need to know how to computer. Who will crack an interview first? Who will get paid more? Who can do more work in less time? Right? Because you now know how to use a computer, you would be paid more. You would be accepted first. You would be awarded more in the marketplace than a person who does not know. Because you 20 years back, you had the innovator's mindset and be like, कुछ नया ट्राई करते ना, प्रॉब्लम क्या है, rather than rejecting it, can't we accept it and be like यार कुछ आया है तो कर लेते, एक्सेप्ट प्रॉब्लम क्या है, देख लेते चला के. मैं थोड़ा बोलूँ पूरा दिन उस पर लगाना है, कुछ नई चीज ट्राई कर लेते ना, सीख लेते किसी से, फाइंड द हु अगेन, राइट. एंड सेकेंडली AI आगे जाके इज नॉट ओनली द फील्ड बट इट्स अ स्किल. कंप्यूटर इज नॉट अ फील्ड, कंप्यूटर इज अ स्किल, राइट. सिंपल है. अब से मैं वीडियो एडिटर नहीं रहूंगा, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ जिसको AI आता है, मेरी में AI आपकी जॉब खा जाएगा. AI ऑब्वियसली थोड़ा जॉब पे इंपैक्ट करेगा, सब कुछ होगा फॉर श्योर, नो डाउट इन दैट. ठीक है, पीपल विल गेट फायर्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड हैपन, राइट. बट इफ यू जस्ट अडेप्ट टू इट, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, बिकॉज नाउ दे आर लुकिंग फॉर AI वीडियो एडिटर. सीख लो. कितने ही टूल है वीडियो एडिटिंग पे, 65, 70, 80. एक दिन का एक टूल भी सीख लो, 80 दिन में तुम हो गए चैंपियन. अभी तुम्हारी जॉब सेफ है, करो जो करना है, तो करो ना यार. सिंपल है, राइट. कितने टूल्स है यार आपकी फील्ड में, कितने ही गिन लो, चलो गिनते हैं, बनाओ लिस्ट, एक्सेल शीट बनाओ. मैं बोलूँ 200 है, 200 दिन हो गया ना, खत्म. अब क्या टेंशन लाइफ में, ठीक बात. Because you know the tools, right? Just solve it. Correct. That's amazing. I said was my last question, लेकिन एक और मेरे माइंड में चीज आ रही है जो पूछे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा कि so far in the conversation कुछ ऐसा परसेप्शन आ रहा है और ऑडियंस को भी ऐसा परसेप्शन आएगा कि यार ये आदमी, इसको तो 9th पे इसने बिजनेस शुरू किया, उसके बाद वहीं से पैसा कमाना शुरू किया, वो 45-50 हजार, उसके बाद आज तो ये करोड़ों में खेल रहा है ये आदमी, इसका ग्राफ तो एकदम ऐसे गया है. ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा ऐसा मानना है. किसी भी इंसान का ग्राफ ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे जाके ऐसे भी गया होगा. तो जिंदगी में फेलियर्स भी आए होंगे, तो जरा थोड़ी फेलियर्स पर बात हो जाए. कभी फेलियर्स फेस किए तो क्या डेवास्टेटिंग थे, क्या हुआ, कैसे निकले? आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट योर फेलियर्स मैन. भाई रोज होता है, मतलब जितने गिले तकियों पे मैं सोया हूँ उतना कोई सो ले तो मेरे इतना पैसा कमा लेगा. दैट्स व्हाट आई से एवरी सिंगल टाइम. सो व्हेन पीपल से हिमांशु यू आर सो सक्सेसफुल, आई वांट टू बिकम लाइक यू एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब भाई जितने गिले तकियों पे मैं सोया हूँ सो लो, बन जाओगे. तो द अमाउंट ऑफ फेलियर्स आई हैव सीन इज, गिले तकिए समझ रहे हो ना, like the amount of failures I've seen in this has been so devastating, so heartbreaking, so everything. धोखे, betrayal, team members, corruption, everything I've gone through. But the reason I don't talk about that on podcast and anything is because जब कोई मुझे सुन रहा है ना तो एक उम्मीद से सुन रहा है. The moment I start talking about यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, दो रियलिटी में होगा, पर मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि बिट्रेल मिलेगा, आपको धोखा मिलेगा, बिकॉज शायद उस पर्सन के दिमाग में चलने लगे क्या धोखा मिलेगा, तो शायद वो नेक्स्ट पर्सन को ट्रस्ट ही ना करे, या उसकी पहली डील थी लाइफ की वो क्रैक ही ना करे, बिकॉज शायद ही धोखा देगा, उसने हिमांशु ने बोला था. दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक मच अबाउट दोस थिंग्स ऑन पॉडकास्ट, बिकॉज कोई मेरे को सुन रहा है तो एक उम्मीद लेके आया यार, मैं पूरी लाइफ में टेंशन में हूँ,
आज ये पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, इसको सुन रहा हूँ यार, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए कुछ तो यहाँ तो ना डरो कम से यहाँ तो ये मत बता कि मेरी वाट लगने वाली है यार. तो दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम दैट उम्मीद किरण हु कैन जस्ट बट लग सकती है. लेट देम. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, रियलिटी में तुम वाट लगने वाली है, बता रहा हूँ भाई, वाट लगने वाली फॉर श्योर. बट डोंट टेक इट एज समथिंग विच विल नॉट मेक यू स्टार्ट समथिंग. स्टार्ट मिलेंगे, पर ये भी है वो मिलने के कारण जो तुम बन जाओगे, दैट्स वेयर द मनी इज. द मनी इज नॉट इन वेयर यू आर राइट नाउ. द मनी इज you going through that failure, setback, dhoka, betrayal, whatever, to become a new person which is not deserving that money or fame or power that you want. This is amazing. I mean, he could have easily chosen to talk about his failures, but he's being very conscious about the fact that if you're listening to this conversation and to this podcast, you got to get something positive out of it and not necessarily get bogged down कि यार ये करके फायदा क्या, परसों तो गिरना ही है मुझे, तो फायदा नहीं, उसका फायदा है. Yeah, even if tomorrow you might end up facing some failures, I think it all is indeed worth it, provided अंदर से आपकी आवाज आ रही है. हिमांशु, it was a terrific conversation. I'm sure मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और I'm sure जिन्होंने ये conversation सुनेंगे या सुन रहे होंगे उनको बहुत मजा आया होगा. You are such a cool, calm, relaxed person, और ये पर्सनालिटी में तभी आता है जब आपने बहुत कुछ देखा हो, जब आपने उतार चढ़ाव ढंग से देखे हो ना, तभी ये ठहराव आता है आपकी आवाज में, आपकी बोली में, आपकी पर्सनालिटी में. और वो आई कैन सी दैट कि ऐसा जरूर हुआ होगा. तो फेलियर्स की बात करेंगे फिर किसी और पॉडकास्ट में. आज थी हमारी बातचीत अबाउट बिजनेस, अबाउट हाउ टू स्टार्ट समथिंग एज अ टीनेजर, about how to scale your business, about high tickets, about funnels, about email marketing and whatnot. That was Himanshu Agarwal for you. Himanshu, कोई last message आप देना चाहते हैं before we end this podcast to our audience? You please go ahead. Wherever you are, whatever age is yours, whatever gender is yours, I don't care. Just take more risk. Number one advice I would give. Life is once you're dead, nobody cares, even you don't. So just take more risk. It will be worth it at the end. And I hope this was valuable. Take more risk, and he hopes that it was valuable. It indeed was. Thank you very much, Himanshu, thank you so for much. accepting to be here. It was such an absolutely amazing conversation. Thank you. Thank you very much. Thank you. तो दोस्तों, ये थी कॉन्वर्सेशन हिमांशु अग्रवाल के साथ. आई एम श्योर आपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो वापस चले जाओ वीडियो पर, पेन उठाओ, डायरी उठाओ, नोट्स बनाओ. You got to take notes out of this conversation. ये सिर्फ सुनने की बातचीत नहीं थी, ये जिंदगी में उतारने की बातचीत थी. और अगर आप इसे जिंदगी में उतार लेते हैं और इस इंसान से अगर 1% भी सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी. If you truly want to be an entrepreneur, there is this man that you can learn from. I hope you enjoyed the session. I'm going to see you again in another episode of Nitin Soni podcast. Till then, take care. See you then.